जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकारिणे। ओम अयोध्यास्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां यथान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकानां कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं देवं श्री राधाकृष्णपदां तं च हे कृष्ण कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमी हरिप्रिय वंशक हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। The blessed Lord said, Shri Bhagavan Vacha Udhva Moolam Adham Sakham Ashwatam Prahor Avyayam Chandam Si Yasya Parmani Yattam Veda Cha Vedvit. We had done this, but again we are starting this only. The blessed Lord said, there is a banyan tree which has its roots upward and its branches down, whose leaves are the Vedic hymns, and who knows this tree is the knower of the Vedas. The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature, and the twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound by the fruitive action of human society. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can see, no one can understand where it ends, where it begins, and where the foundation is. But with determination, one must cut down this tree with the weapon of detachment. So, doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns, and there surrender to that personal, supreme person of Godhead, from whom everything has begun and in whom everything is abiding, since time immemorial. One who is free from illusion, false prestige, and false association, who understands the eternal, who is done with material lust, and is freed from the dualities of happiness and distress, who knows how to surrender unto the Supreme Person, attains that eternal kingdom. That abode of mine, Arjun, Krishna is saying, that abode of mine is not illuminated by the sun or the moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to this material world. The living entities in this conditioned world are my eternal fragment parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Mavamsha jivaloke jivabhuta sanatana mana sastan indrani prakatistani karshati. So, this is here, Krishna, no, here, ulta tree. Huh? This material world is a perverted reflection of the spiritual world. The material world is a perverted reflection. Krishna is talking of this material world. That how once, by our three things, Krishna says. What are those three things? Illusion, false prestige, and false association. So how does the illusion starts? The illusion starts because of our misidentification.
We want to enjoy like Krishna enjoys in the spiritual world. We all are with Krishna in the spiritual world. Our origin is the spiritual world. So we see Krishna enjoying there with his friends, with his sakhas, with his different you know associates. He's enjoying in the spiritual world. In Golok Vrindavan, Krishna is enjoying. In Vaikuntha, Narayan, another different Vaikuntha planet, different presiding deities. They are there. They are the center of attraction there. All the devotees are serving them. So when we see that Krishna is enjoying, we have a desire. We get this desire because of our free will. We have a desire to enjoy like Krishna. Yesterday I had quoted yesterday I quoted a word from the Vedas, which talks of this. The only similarity between the living entity and the jiva is what? What was that verse? Anyone remembers? Hmm? Anyone remembers the verse which I had quoted? What was that word? That word क्या था उसमें? भोग मात्र. Yes, enjoyment. Enjoyment. So we have this tendency to enjoy like Krishna, because Krishna is the supreme enjoyer. So we, being part and parcel of Krishna, also has a minute enjoyment tendency. So because of that, we want to enjoy like Krishna. So Krishna says that is not possible in this material world. Like if a small child goes to his mother or her mother and tells the mother, "Oh, I want to enjoy. Sorry, I want to cook." Like you're cooking in the kitchen so nicely. I'm observing you, 5-year-old child, and she goes to her mother in the kitchen and says, "Mother, mama, I want to cook like you." What will the mother do? What will the mother do? Hmm? What will that mother do? Give her the kitchen to cook? बोलेगी यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से किचन से, बाहर जाके खेलो. लेकिन फिर भी चाइल्ड रोएगी, नहीं मुझे खेलना है, स्टबन. द चाइल्ड इज वेरी स्टबन. ही वांट्स टू डू, तो क्या करेगी मम्मी? शी विल गो टू द मार्केट, शी विल गेट अ टॉय किचन. बोलेगी लो, इससे कुक करो. चाइल्ड को तो पता नहीं, उसको लगता है सेम ही है. She enjoys her toy. We all have got, if you remember, if you all have memory of your childhood, everyone has, played with the toy kitchen. स्टोव होता है वहाँ पे, कप प्लेट होती है वहाँ पे, ग्लास होती है, गैस भी होता है, सब कुछ होता है. वो बच्ची को लगेगा, अरे वाह, मेरे लिए भी टॉय किचन आ गया, राइट? एंड शी स्टार्ट कुकिंग इन द टॉय किचन. बट 2 घंटा खेलने के बाद में जब भूख लगेगी उसको, तो क्या टॉय किचन उसको खाना दे पाएगा? Will that toy kitchen be able to give the food? नहीं देगा. उसी प्रकार we go to Krishna. Oh Krishna, you are enjoying very nicely. You have your parent here, Nand Baba and Yashoda. You have your servants here. You have your friends here, Balaram and everyone. You have your girlfriends, gopis here. And then why should you have all the fun, Krishna? When we want parents, we want friends, we want servants also, जो हमारा काम करे. Plus we want wife and we want girlfriends also. So when we want to enjoy Krishna like, because we have that desire. Krishna bolte not possible for you. Your constitutional position is to be das anudas. Jivire Sarupe Krishna Nityadas. But we say no, we want to, because we have that bhoga matra in our enjoyment tendency.
And Krishna said, okay. Krishna goes to the market. He has no market. He makes the market. महातत्व जो कृष्णा की जो प्रदान होता है, प्रदान, देयर इज अ प्रदान. जैसे आपके घर में जब तक टॉय किचन नहीं आता है, इट इज अनमैनिफेस्टेड. टॉय किचन आता है, मैनिफेस्ट होता है घर पे. वैसी प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स है क्रिएशन के, जब वो अनमैनिफेस्टेड स्टेज में होते हैं, दे आर नॉट मैनिफेस्टेड येट, दे आर कॉल्ड प्रदान. सो कृष्णा गेट्स दैट प्रदान and he expands as Mahavishnu, and then he have with all these ingredients pradhan mixed. When pradhan is mixed with the three modes of material nature, rajogun, tamogun, sattvagun, plus time factor kal, it becomes Mahatattva. So Krishna has this Mahatattva, and all those living entities who want to enjoy separately from Krishna, they are all put into Mahavishnu's body. So Mahavishnu takes them, and along with the Mahatattva, which is manifested time, the three modes of material nature, and the material ingredients. कौन से ingredients? Earth, water, fire, ether, mind, intelligence, ego. Karma Indriya, Gyan Indriya, working senses, non-acquiring senses, and all. So Mahavishnu takes them with him. It's like घर पे जब मार्केट जाते हो आप लोग ना, तो खाना बनाना होता है घर में, तो क्या करते हो? मार्केट जाके, घर में कुछ नहीं है, नया घर है, तो अभी घर में तो कुछ मैनिफेस्ट हुआ नहीं है खाने के लिए, लेकिन भूख तो लगी है, खाना बनाना है, तो मार्केट जाओगे, सबसे पहले जाके पत्ता गोभी लोगे, या कॉलीफ्लावर लोगे, या भिंडी लोगे, या जो भी है लोगे, आलू लोगे, टमाटर लोगे. फिर उससे तो खाना बनेगा नहीं, तो फिर आपको बॉइल्ड खाना पड़ेगा, तो जाके फिर मसाले लोगे, नमक मिर्ची ये सब लोगे, है ना. फिर ऑयल लोगे, सब लोगे, और गैस भी बुक करोगे, सब लेके घर पे आओगे और किचन में रखोगे. फिर धोगे उसको अच्छी तरह से, फिर कढ़ाई वढ़ाई सब में डालोगे उसको, राइट. कढ़ाई में डालोगे और उसमें फिर चालू होगा आपका खाना बनाना. उसी प्रकार से महाविष्णु, he takes all these material elements together, the three modes of material nature, the time factor, and the karma indriya, gyan indriya, and the mind and ego. Mind, earth, water, fire, ether, and mind and ego. All these things he takes together, and उसको एक कढ़ाई में डालते हैं वो. ठीक है. उनकी कढ़ाई क्या है? What is the कढ़ाई of Mahavishnu? महाविष्णु की कढ़ाई कौन है? मटेरियल वर्ल्ड, महातत्व, Durga Devi is the कढ़ाई of Mahavishnu, right? That is the कढ़ाई of Mahavishnu. Durga Devi is the कढ़ाई, and वो कढ़ाई के अंदर जो भी हम चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, सब डांडिया रस खेल रहे हैं. So Durga Devi is the कढ़ाई. And what is the fire? Who is the fire? Who is the fire? Shiva is the fire. So Shiva, is in contact with the Mahatattva, and in the womb of the कढ़ाई के अंदर होते हैं ना, सब सारे इंग्रेडिएंट्स कढ़ाई के अंदर होते हैं, मसाला वसाला ये सब. और एंड में तड़का लगाने के लिए क्या करते हैं महाविष्णु? परफेक्ट तड़का लगे, क्या करते हैं महाविष्णु? तड़के के बिना क्या होगा ना, मजा नहीं आएगा. वो होते हैं दाल तड़का. ग्लांस तो हो गया, आग जल गई, ग्लांस हो गया. तड़का लगता है लिविंग एंटिटीज का, हमारा. बोलते हैं जाओ आप लोग मिक्स हो जाओ. जैसे तड़का मिक्स हो जाता है सब्जी के साथ में, और फिर आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से हम घुल मिल जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, विद द फायर एंड इन द कढ़ाई. हम बर्न हो रहे हैं उसमें. टाइमर भी होता है उसमें, जितने टाइम से, वरना खाना जल जाएगा, तो एक टाइम भी होता है. तो
तो उसी टाइम मतलब हमारी लाइफ स्पैन, वो टाइमर होता है उसमें। तो इस प्रकार से हम बिकॉज ऑफ आवर डिजायर हम इस कढ़ाई रूपी माया में फंस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स टू एंजॉय लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड. So then we are here and we are trying to lord, we are trying to control everything here. But are we able to control everything here? Anything here? We all wanted to enjoy like Krishna, but democracy doesn't allow us to enjoy also. Imagine. हम वहां से आए यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स बनाने, बट एंड वाइफ्स बनाने, बट कलयुग के अंदर डेमोक्रेसी ने हमसे वो हक भी छीन लिया. सोचो इतना खराब है ना. हम खुश होके वोट देते हैं, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर कांग्रेस, राइट. बेचारा जिस हक के लिए हम यहाँ पे आए थे, फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम. आवर फर्स्ट एजिटेशन वाज अगेंस्ट कृष्णा. आई वांट टू मैरी सो मेनी women because you have married 16,108 women. So when I want to marry them, we came here for that, to enjoy, to this. But यहाँ पे आके डेमोक्रेसी ने हमारे ऊपर ताला लगा दिया. No polygamy here. No, you can't marry also here. एक रहो. बेचारा कैसे हमारे साथ में खेल खेल लिया. और ये वही होता है ना, पैकेजिंग. आउटसाइड से पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है एवरीथिंग की कि देखो ये खरीदो और आप गोरे हो जाओगे. फिर मैंने अपनी भैंस पे ट्राई किया, भैंस तो गोरी हुई नहीं, फिर भी गोरे हो जाओगे. चलो बढ़िया है. तो पैकेजिंग अच्छी होती है, अंदर कुछ होता नहीं एकदम. तो अगर पैकेजिंग किया माया ने कि आजा बच्चे, लिविंग एंटिटीज आजा हमारे पास, आजा आजा, हाँ तुम्हें यहाँ पे आके इतनी वाइफ्स मिलेगी, इतने हस्बैंड मिलेंगे, इतनी गर्लफ्रेंड मिलेगी, इतने बॉयफ्रेंड मिलेंगे, यहाँ पे आओ. कहाँ पे गोलोक में बैठे हो, कहाँ गोलोक में बैठे हो तुम. हाँ वहाँ पे तो केवल कृष्णा को मिलता है सब, तुम्हें नहीं मिलेगा. हम सोचते हैं वाह ये तो अच्छी माया है, हाँ हमको तो इतने सारे कुछ मिलेगा यहाँ पे. एंड वी जंप हियर. ओ बाय बाय कृष्णा, यू एंजॉय, नो वी आर गोइंग टू एंजॉय. हम ऐसे जंप मार के यहाँ पे आते हैं और हमको ऊपर से दिखता है वो मिराज होता है ना, मिराज. हाँ डेजर्ट में मिराज, दूर से पानी दिखता है, लेकिन वहां जाओ तो खाली डेजर्ट ही डेजर्ट है. उसी प्रकार से हमको हमको दूर से हरियाली दिखती है यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, माया में. होता है ना, खाना पक रहा है तो कितना अच्छा दिखता है, एकदम ऐसा लगता है कि वाह. बट उसमें जंप मारते हैं तो फिर लगता है अरे तो बेकार टेस्ट है. तो वी यू नो our experience here, then in the beginning obviously it is some enjoyment is there. You know, it is said that in the beginning material world it is like nectar, but in the end it is like poison. सतयुग से स्टार्ट होते हैं हम, नेक्टर होता है. सतयुग में अलाउड होता है ना कि यू कैन मैरी एनीवन, चूज एनीवन. सतयुग थोड़ा अच्छा एंजॉयमेंट होता है. फिर त्रेता आते आते कम हो जाता है, द्वापर में और कम, और कलयुग के अंदर तो डेमोक्रेसी आ गई, डीमन क्रेजी. यहाँ तो कुछ भी नहीं फ्रीडम है. जिस फ्रीडम के लिए हम यहाँ पे आए थे उसी फ्रीडम के लिए वापस फाइट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में. वी वांट विमेन लिबरेशन, LGBTQ club liberation, this liberation, that. We came for enjoying all these things here, but not getting. 2 दिन पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सेम बाहर की चकाचौंध देख के हम यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन अंदर आके वही काली रात है. तो ऐसे काली रातें होते रहती है, बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, वी गेट नथिंग. ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, कितना भी अर्न कर लो, बाप रे बाप, यू कांट टेक एनीथिंग. When you earn, you become very rich. Then you go to the heavenly planets to enjoy. वहाँ पे जाके आप बैठते हो, आपका क्रेडिट खत्म होने वाला होता है वहाँ पे. Then from there you are sent to the hellish to suffer your bad karmas. खत्म होने वाला है तो you are very depressed there. अरे अब तो हमको नरक में जाना पड़ेगा सफर करने. एंड देन बोलते हैं अरे यू नो काश हमने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से यूज किया होता कृष्णा की भक्ति कल्टीवेट करने के लिए, तो हमें ये हेल हेवन के चक्कर नहीं काटने पड़ते. 84 लाख स्पीसीज में हमको बार बार नहीं जाना पड़ता. एक मिस्टेक एंड यूर गॉन. यू नो जस्ट फॉर आवर टंग, यू नो टू सेटिस्फाई द टंग, हाउ मच सिंस वी क्रिएट. नॉन वेज, यू नो, we just want to, just for the satisfaction of our tongue, you know,
soft लगते हैं, chicken, mutton, all these things, you feel very soft on your tongue, so you love to eat them and taste है अच्छा, right? But उसके लिए वो होता है ना आग। आग देखिए, आग, आग के अंदर कौन भाग के जाता है? वो पतंगे, देखे पतंगे? हैव यू सीन पतंगेस? रात को आते हैं ना पतंगे, देखा होगा आप लोगों ने, किसी ने, फायर में भागते हैं भागते हैं भागते हैं, यू नोटिस्ड? और फिर क्या होता है फायर के अंदर जाके? व्हाट हैपेंस इन द फायर? लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और लाइट में जाके ही मर जाते हैं, फिनिश। उसी प्रकार हम अपने टंग के कारण भोग वांछा भोग करते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, और बस वही टंग हमें कहाँ भेज देती है? 84 लाख स्पीसीज में वापस। जिस प्रकार लाइट से पतंगे अट्रैक्ट होते हैं, उसी लाइट में जाके दे डाई ऑल्सो। उनका लाइफ उतना ही होता है, भाग के वहां जाते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, एक जाता है दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे लगा डेड। उसी प्रकार वी जस्ट टू एंजॉय आवर सेंसेस, वी unrestricted enjoyment we want to do, we eat non-veg, we drink, we smoke, and all these things entangle us. It is said in Garuda Puran that the number of hairs on the animal's body, if you eat chicken, mutton, whatever you eat, the number of hairs on that chicken's body or the feathers or a goat or जो भी है ना, उतने लाइफ टाइम के लिए आपको उसी शरीर में गुजारना पड़ता है, जो गोट के शरीर में नेक्स्ट लाइफ, उतने लाइफ टाइम के लिए। सो इफ यू हैव ईटन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉन वेज, देन ह्यूमन लाइफ आपको बहुत लाखों साल बाद वापस मिलेगा। यू हैव टू बी स्ट्रगलिंग इन द एनिमल स्पीसीज ओनली। और फिर क्या होगा? फिर आप बॉयल होगे। तो जो आपने किया है वो आपके साथ में भी होने वाला है। इमेजिन इफ समवन पुट्स यू इन अ बॉयलर, कैसा लगेगा? Have you seen how they kill the cows and the different animals or how they treat the chickens in the slaughterhouses? They first cut the beak, their beak, whatever you call it. They cut it, then they cut the feathers and this and that, so much. एक साथ में सबको रख देते हैं झुंड में। इमेजिन वो आपको वैसी लाइफ आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी हर जगह जाके, जस्ट बिकॉज यू कुडंट कंट्रोल योर टंग। खाली टंग के एंजॉयमेंट के लिए लाखों साल तक you'll have to suffer the same consequences. So material world ऐसा ही होता है. This is how the material world works. Even when you have a human form, what do you need to eat? आपको खाने के लिए क्या चाहिए दिन में? ये बताओ मुझे. How much you eat in a day? गधे की तरह डे एंड नाइट स्ट्रगल करते हो 10 चपाती के लिए. वो होता है, कभी देखा है गधे को कैसे काम कराते हैं? धोबी होता है, गधे को कैसे काम कराता है? वो गधे के सामने कैरेट लगा देता है अपने सर के ऊपर से जाके, और गधे को दिखता है दूर कैरेट है, 12 फीट आगे जाके कैरेट है, सर के ऊपर से होता है 12 फीट या 10 फीट जो भी, और गधे को लगता है कि वो चलेगा थोड़ा तो उसको कैरेट मिल जाएगा, कैरेट तक पहुंच जाएगा. वो गधा चलना चालू होता है, चलता है, कैरेट और आगे जा रहा है, तो कैरेट उसके सर पे अटैच होता है. चल के धोबी उसको धोबी घाट से घर तक लेके चले जाता है, और सेम धोबी वहां से घर से दूसरे लोगों को कपड़े देने लगे. इट टेक्स. लेकिन एंड में वो गधे को कैरेट नहीं मिलता है. क्या मिलता है? बोलता है अच्छा कैरेट दे दे, जा घास खा ले जाके. तो घास तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, तो घास के लिए गधे को इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या? गधा चले जाता कहीं पे और घास खा लेता, घास मिल जाती उसको. हाँ, गधा, हमें थोड़ी बुद्धि भी, गधा बोलते हैं ना उसको, हम थोड़ी बुद्धि होती तो एंड में क्या चाहिए? घास चाहिए उसको, राइट? घास सब जगह अवेलेबल है, लेकिन वो घास के लिए धोबी उसको उल्लू बना के कैरेट लगा देता है उसके सामने, वो चलते रहता है, गधों कैसे काम करता रहता है. एंड में वही घास मिलती है जो फ्रीली अवेलेबल है.
ये सब हम सबके साथ में ऐसा हो रहा है। ये मटेरियल इकोनॉमिक्स जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की ऐसी है, एंड में खाना आपको 4 चपाती है और रात को 4 चपाती, रात को 3 चपाती खा पाते हो, थक जाते होते हो तो भी, लेकिन उसके लिए ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि यू हैव टू रन हियर एंड देयर लाइक कैट्स एंड डॉग्स, गधों की तरह कम कम काम करवाते हैं आपके। अरे इससे बेटर है थोड़ा अपना लैंड ले लो कहीं पे जाके। हाँ, ऑल यू पीपल जो अपने बड़े बड़े पैकेज हैं जिनके पास में 10-10, 20-20 लाख के पैकेज, जाके 3-4 एकड़ जमीन ले लो कहीं पे, गेहूं उगा, और कोई फार्मर्स को रख लो वहां पे और गेहूं उगा लो। उससे बेटर जो खाना आपको शहर में मिलता है वहां से मिल जाएगा आपको, और पीसफुल लाइफ जियोगे। लेकिन क्योंकि शहर की चकाचौंध माया नगरी, हाँ, वो आपके दिमाग में फिट कर दिया एजुकेशन सिस्टम ने कि आपको गधों से काम करना है, आप करोगे। सिस्टम में आपके, आप ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, कंडीशनड, प्रोग्राम कर दिया आपके यहाँ कि आपको ऐसे ही काम करना है, इसलिए आप आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते हो। और आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक खाली अपने ईएमआई भरने के लिए पड़े रहते हो। इतनी छोटी जमीन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, और बिल्डिंग की कॉस्ट 2 करोड़ कर दी शहर में। अब उनको खरीदने के लिए आपको गधों से भागना पड़ेगा। यही आप 1 करोड़ 2 करोड़ के कहीं जाके लैंड ले लो, इतना लैंड अवेलेबल है, अपना एग्रीकल्चर करो, जिंदगी आपकी इतनी अच्छी बीतेगी। बट 2 BH के अपार्टमेंट 700 स्क्वायर फीट के, इतने क्या बोलते हैं, स्क्वीज्ड जगह पे आपको रहना है, और वहां बैठ के आपको जो विलेज में उस पे हंसते हो। अरे क्योंकि आपके अंदर दिमाग में प्रोग्राम कर दिया है ना कि विलेज वाले तो है ना वो ऐसे ही हैं। अरे भाई साहब, आपसे बड़े लैंड है उनके पास में, आप 2 BHK के लिए जिंदगी भर भागते हो इधर से उधर, 1-2 करोड़ जमा कर पाते हो, फिर भी 2 BHK ले पाते हो। वहां पे 10-10 एकड़ लेके बैठे हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको लुक डाउन करता है हमारा समाज, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट। और ये लोग जो स्क्वीज्ड हैं, कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई करता है समाज। उल्टा टॉपसी टर्वी, पूरा मटेरियल वर्ल्ड टॉपसी टर्वी है। जो एक बार वन पर्सन वाज एंजॉयिंग ऑन द बीच, बीच पे लेटा हुआ था, तो एक आदमी आया उसके पास में, बोला हे क्या कर रहे हो उधर? बोला मैं एंजॉय कर रहा हूँ बीच पे। बोला ये तुम्हारे एंजॉय करने की उम्र है, काम करो। बोला अच्छा फिर क्या होगा? फिर आपके पास पैसे आएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आपके पास लग्जरी आएगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर आप उसको एंजॉय करोगे। बोला मैं वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, मैं लग्जरी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आसमान के नीचे बैठा हूँ, खुली ऑक्सीजन ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ सब कुछ। और आप बोल रहे हो कि मैं एंजॉय करूंगा उसके बाद में? मैं वही कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। आप इतना करने के बाद में एंजॉय करोगे, मैं उसके पहले कर रहा हूँ। आप भी ये करोगे ना? हाँ, आफ्टर अर्निंग सो मच, डूइंग ऑल काइंड ऑफ स्ट्रगल, दिन रात, जब 50-60 साल के बुढ़े हो जाओगे तो आके यहाँ पे आप पीछे बैठोगे और खुली हवा लोगे, खुली सांस लोगे और लोगों को एंजॉय करोगे। हाँ, वही आपको करना है, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है? बस क्योंकि वो प्रोग्राम कर दिया आपके माइंड में कि आपको स्ट्रगल करने के बाद में एंजॉय करना है। 50 साल 60 साल के बाद में एंजॉय करो, जब तक स्ट्रगल करो। ये आपके दिमाग में कंडीशनिंग कर दी गई है एजुकेशन सिस्टम के अनुसार। इसलिए जो आदमी अभी मजे से जिंदगी जी रहा है, वो शांति, हाँ, उसको आपको लगता है कि अरे वो पागल है, और आप सही हो। बेचारा वो, उसको जो ऐसे जो खुले आसमान के नीचे रहता है और टेंशन फ्री है ना, उसको वो कभी हार्ट अटैक से मरने वाला नहीं है। उसको कभी डायबिटीज नहीं होगी, उसको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, उसको कभी कुछ नहीं होगा। और आप जो भाग रहे हो ना, वो 30 साल की उम्र में आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, 40 साल की उम्र में आते आते आपको हार्ट अटैक हो जाएगा पहला। ओके, क्या खा रहे हो गन क्या पेस्टिसाइड्स और ये सब के तो खाने खा रहे हो आप लोग। You struggle so much, and what are you getting? What food are you getting? Injected food, artificially grown food, GMO, genetically modified food. You are having all those things. उससे क्या हो रहा है? कैंसर, क्लॉट्स,
हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्रेकअप्स, इतने कमजोर हो गए हमारी टेम्परामेंट, इसी स्ट्रगल के कारण इतना कमजोर हो गया है कि छोटा सा हार्ट ब्रेक हमें सुसाइड करने में मजबूर कर देता है. वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट द पेन ऑफ हार्ट ब्रेक्स. हमारा टेम्परमेंट कॉन्शियस इतनी वीक हो गई है. कैसे क्यों हो गई है? क्योंकि जो नरिशमेंट के इंग्रेडिएंट्स है हमको मिलते नहीं हमारे बॉडी को. हमारे ब्रेन के पास में नरिशमेंट की जो फूड से नरिशमेंट आता है वो जाता पहुंच ही नहीं पाता है. तो हमारा ब्रेन सबसे पहले वीक होता है, और जब ब्रेन वीक है तो टेंशन तो ब्रेन को ही वहां पे आने वाला, सबसे पहले आपका वही गिव अप कर देता है. उससे आपकी हाइपरटेंशन ये सब चालू हो जाता है, का हार्ट कमजोर हो जाता है. यू कांट टेक स्ट्रेस एनीमोर बिकॉज योर बॉडी में आपने बचपन से क्या खाया है, पैदा हुए हो वो टाइम पे आपको टीके लगने लग जाते हैं. टीके आओ टीके लगाओ. कौन कौन से टीके? सबसे पहले पोलियो के टीके, उसके बाद में निमोनिया के टीके. बचपन से आपके बॉडी में केवल केमिकल्स ही डाले जा रहे हैं. ओनली दे आर पुटिंग केमिकल्स इन योर बॉडी फ्रॉम द चाइल्डहुड, और ऐसे बिहेव करते हैं कि उसके बिना आप मर जाओगे. 100 साल हुए नहीं है इंजेक्शन को, उसके पहले लोग क्या ऐसे हवा में पैदा होते थे, हवा में जीते थे. बट ऐसे साइंस को और सबको फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने और डॉक्टर्स ने और एजुकेशन सिस्टम में टर्न कर दिया है कि यदि आप वो इंजेक्शन नहीं लोगे तो एक बूंद पोलियो का या तो मतलब आप मरने, आपकी जिंदगी बेकार है. टेल मी 100 साल पहले 200 साल पहले लोग क्या मरते नहीं, मर जाते थे सब. हाउ मेनी पीपल वर देयर इन महाभारत 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. So if there were around 200 to 300, मतलब 250 मानो एवरेज क्षत्रिय निमोनिया के टीके के, बिना टाइफॉइड के टीके के, बिना ये सब टीकों के, ये पॉपुलेशन थी वो टाइम पे वर्ल्ड की. कहाँ से जिए इतने लोग बिना ये सब के? तो अगर लोग नहीं जीते तो बस आप लोग के दिमाग में फिट कर दिया है कि आपको टीके लगाने हैं क्योंकि वो उनसे फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड चलने वाला है, राइट? एंड everyone has got caught into this thing. We all have become caught, we have become so much, what do you say, mesmerized by and scared also. Scared. कोविड के सेकेंड वेव में इतना ये कर दिया ऑक्सीजन की कमी आर्टिफिशियली कि सब लोग ने जाके वैक्सीन ले लिया. वैक्सीन लिया सबने. क्यों लिया? डर के लिया ना वैक्सीन. How many of you took vaccine very happily? ओ हमको वैक्सीन लगाओ. सबने डर के लिया वैक्सीन क्योंकि सेकेंड वेव के कोविड में इतने लोग मर रहे थे हमारे आसपास, ऑक्सीजन की कमी थी, तो हम सबने जाके भाग भाग के दो भैया. और उससे अब मालूम पड़ रहा है कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो ये फियर फैक्टर पे प्ले करते हैं, हमारे फियर फैक्टर पे हर चीज. अरे आप नहीं कमाओगे तो खाओगे कैसे? अरे आप ये नहीं करोगे तो वो कैसे होगा? अगर पैसे नहीं होंगे तो लड़की कैसे मिलेगी, लड़का कैसे मिलेगा? सब कुछ फियर फैक्टर पे वेब पेस्ट है वर्ल्ड में, आज की वर्ल्ड में. और हमें फियर फैक्टर के कारण मटेरियल वर्ल्ड में एंटेंगल रखते हैं कि अरे हमारा क्या होगा? अगर तुम साधु बन जाओगे तो हमारा कौन देखेगा? अगर मैं कल मर गया तो फिर आपका कौन देखेगा? इफ आई डाई टुमारो, पेरेंट्स से ना कि अरे हमको अगर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए तो हमारा कौन देखभाल करेगा? अरे भैया अगर बच्चा कल मर गया आपको तो फिर कौन देखभाल करेगा आपका? और बच्चा जब पैदा नहीं होता तो वो टाइम पे कौन देखभाल कर रहा था आपका? बताओ. बट फियर फैक्टर, इस फियर फैक्टर में इसको बोलते हैं 1 रुपए का सर्कस. कितने को पता है 1 रुपए का सर्कस? पता है ना? बैच की रिक्वेस्ट नहीं, शी कैन ज्वाइन विदाउट इवन request because this is a trial session, anyone can join. 1 रुपए का सर्कस पता है ना? हाँ, ये 1 रुपए का सर्कस है. ये आपको मार्केटिंग उल्लू बनाना और फिर आपको चाबुक से मारना. एक जंगल, एक विलेज था, वहां पे बाहर बैनर लगा है जंबो सर्कस, 1 रुपए में सर्कस देखने आओ सब, और पोस्टर में लगा दिया रशियन गर्ल्स.
हाथी, घोड़े। अब तो पूरे गांव वाले तो अरे वाह, पहली बार रशियन मीम देखने को मिलेगी हमको। सब एक्साइट हो गए, पूरा गांव एक्साइट हो गया। वाह, वी आर गोइंग टू हैव दर्शन ऑफ रशियन विमेन। तो सुबह डोर खुलने वाला है 10 बजे, सुबह 4 बजे से लाइन लग गई जंगल की, मतलब सर्कस के लिए। लंबी लाइन, किलोमीटर लंबी लाइन। सुबह आजू बाजू वाले गांव वाले सब आ गए, लाखों लोग। जब आया सुबह, गेट कीपर तो बोला अरे बाप रे बाप, ये तो आज तो लाइन खत्म ही नहीं होगी, इतनी लंबी लाइन है ये। क्योंकि 1 रुपए में सर्कस था खाली। तो बैठा टिकट वाला, बोला लाओ 1 रुपया। 1 रुपया रखा, टिकट लो, जाओ अंदर। अब भाई साहब पहला इंसान अंदर गया, दरवाजे के थ्रू अंदर पहुंचा और देखा सब काला 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 काला, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोला कहाँ है? बोला अभी अभी आएगा, अभी आएगा, अभी अभी होगा कुछ, अभी लाइट चालू होगी। एक्साइटमेंट में वो सब अंदर तो सब काला काला पड़ा है। फिर आवाज आई, टक 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 टक। बोला कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है। जो टक टक कर रहा था उसके ऊपर एक फोकस लाइट चालू हुई और उसने देखा अरे, फिर देखा उसने ये तो कोई लंबा सा जल्लाद टाइप खड़ूस इंसान हाथ में हंटर लेके खड़ा है। तो वो गया उसके पास, पूछा भाई साहब ये सर्कस कहाँ हो रहा है, कब चालू होगा, कब आएंगी रशियन मैम, कब होंगे हाथी घोड़े चालू? तो जल्लाद ने अपना एक हंटर लेके एक धम करके ग्राउंड पे मारा। बोला मूर्ख, कभी 1 रुपए में सर्कस देखा है? बोला मतलब ये ले, धम करके चाबुक, दम करके चाबुक। चाबुक, वो चाबुक से माया हमको चाबुक मारती है। तुमको फ्री में चाहिए था एंजॉयमेंट इधर मटेरियल वर्ल्ड में? हाँ, कृष्णा को छोड़ के यहाँ पे आए थे तुम एंजॉय करने, लो एंजॉयमेंट। ठम करके बीबी से झाड़ पड़ती है, ठम करके गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, ठम करके बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जाता है, ठम करके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठम करके प्रॉब्लम हो जाती है, ठम करके ये डिजीज होगी, ठम करके हमको वो डिजीज, हार्ट अटैक, ये सब, पैसा चले गया, ये चले गया। चाबुक पे चाबुक, चाबुक पे चाबुक, चाबुक पे चाबुक पड़ते हैं हमको। हाँ, चाबुक पे चाबुक पड़ते हैं हमको। वो बेचारा बोलता अच्छा बस बस, मैं नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ पे। हाँ, वेरी गुड। तो फिर वो चाबुक मारना बंद करता है। फिर वो आदमी उठता है, वो बोलता है, बाहर जाता है, रो, फिर बोलता है अरे यदि मैं ऐसे बाहर चले गया तो लोग हंसेंगे मुझ पे, बोलेंगे "ए, देखो मूर्ख बना, मूर्ख बन गया, मूर्ख बन गया"। क्यों नहीं, जो मजा मुझे मिला है बाकी को भी मजा कराऊं। हमारे घर वाले ऐसे ही होते हैं, बेटा तू शादी कर ले, तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अच्छा पापा जी, आपकी हो गई जिंदगी सफल? हाँ बेटा, बीबी अच्छी मिली होती तो हो जाती शायद। अच्छा, आपके भाई की हो गई सफल? उनको भी बीबी अच्छी मिली होती तो हो जाती, मतलब अच्छी मिली होती तो होती ना, अभी तो नहीं हुई ना। दिन भर झगड़ा करते हो आप लोग, सुबह सुबह बचपन से देख रहे हैं, यू ओनली फाइट। हर छोटी छोटी बातें में एक दूसरे को गालियां देते हो, ये करते हो, करते हो, कंट्रोल करते हो, ये करते हो, अब अच्छी हो जाएगी। 1 रुपए का सर्कस, वो उसने भी सोचा अरे मुझे इतना मार पड़ी, सब लोग को मार पड़नी चाहिए ना, मैं अकेले क्यों मार खाऊं? तो गया रूम के बाहर, मतलब पर्दे के बाहर, और जाके डांस करने लग गया। बोला अरे जबरदस्त सर्कस, क्या सर्कस था, बाप रे बाप। वो रशियन मैम तो बस मेरे ऊपर ही आके गिर गई बस वो। अरे एक्साइटमेंट सब में, क्या बात है, रशियन मैम ऊपर गिर गई तुम्हारे, तुम्हारी तो जिंदगी सफल हो गई। अरे बस वो हाथी के ऊपर मैं सफारी किया, अरे क्या सर्कस, क्या, जाओ अंदर सब लोग। वो दूसरा वाला जो टिकट, मजा आ गया अब तो, अरे आज तो जिंदगी सफल बस। ओ बोला कि अब तो बीवी को छोड़ दूंगा मैं, मेरी है ना वही अंग्रेजी मैम, जो रशियन मैम है उसी के साथ रहने वाला हूँ मैं। वो गया अंदर, वही गया वैसे ही गया, उसको भी चाबुक, धम धम धम, ऐसे कर करके एक एक करके बाहर आ रहे, मार खा करके बाहर आ रहे, लेकिन बाहर जाके बोल रहे बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया। उसी प्रकार हमारे घर वालों से जाके पूछो किसी से भी, आपकी जिंदगी ऐसे चल रही है, क्या करें कॉम्प्रोमाइज में, लेकिन तुम भी कर लो शादी है ना, शादी करो जब भी जिंदगी सफल होगी। आपकी होगी नहीं है, लेकिन तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारे कर्मा मेरे से अच्छे हैं। फिर हम भी वही चीज हमारे बच्चों को बोलते हैं कि तुम कर लो। वो बेचारे ऐसे ही सर्कस चलते रहता है, इस मटेरियल वर्ल्ड, माया, ये माया जाल। तो जो इंसान ये समझ जाता है ना कि भैया ये तो हमारे लस्ट के कारण, हम लस्ट के कारण ही अटैच होते हैं मटेरियल वर्ल्ड से। डिजायर, डिजायर कन्वर्ट होता है लस्ट, जब हमारा जो डिजायर होता है टू एंजॉय, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद मटेरियल मोड ऑफ पैशन,
it turns into lust, material lust. कामनाएं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसी प्रकार जैसे गधा के आगे कैरेट लगा के उसको उल्लू बनाए थे, वैसे हम उल्लू बनते हैं मार्केटिंग के पीछे जा जाके, और इस पे ट्राई करते हैं, वहां ट्राई करते हैं, वहां, और हर जगह से हमको चाबुकी मिल के आता है, और एंड में हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है यहाँ से। तो ये समझ में आ जाएगा हमको कि ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। 1 रुपए में कोई सर्कस नहीं होता, 1 रुपए में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता। कृष्णा के बिना एंजॉयमेंट कर ही नहीं सकते हम, कृष्णा के साथ में ही। जैसे जो बॉडी होती है हमारी, हाथ, पांव, दे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हाथ सोचे आज कि अरे यार मैं क्यों इतनी मेहनत करके मुंह में खाना डालूं, मैं अपने आप ही खाना खा लूंगा, तो क्या कभी हाथ अपने आप खाना खा सकता है? कैन द हैंड एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी? विल द हैंड बी एबल टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी? हाँ, the hand thinks, I will only feed myself. Why should I feel the mouth? इतना मेहनत मैं कर रहा हूं, मेहनत ना मैं उठा रहा हूं सामान, तो मैं क्यों मुंह के अंदर क्यों डालूं? मैं अपने आप भी खा लेता हूं। हो सकता है कभी ऐसा? पाँव सोचेगा अरे मैं इतनी मेहनत करके चल रहा हूं, मैं क्यों मुंह में डाल ये सब करूं, मैं अपने आप ही खा लेता हूं सब कुछ। नहीं होता है ना, एक बॉडी होल होती है, एज अ होल इट वर्क्स, देन इट इज हेल्दी। सेपरेटली वर्क करेगी तो हेल्दी कभी नहीं होगी। हाथ सोचेगा अरे मैं अलग से काम करूंगा, मैं हाथ से जुदा हो जाता हूं, मैं बॉडी से जुदा हो जाता हूं, मतलब the hand will become completely deformed and finished off, no value of the hand. So हाथ अगर अलग से सोचेगा कि मैं बॉडी से अलग रहूं, तो हाथ की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार हम जब तक सोचेंगे हम कृष्णा से सेपरेटली एंजॉय करेंगे, हमारी वैल्यू शून्य है। जब भी हमको शून्य बोला जाता है, शून्य, वी आर जीरो, वी कम विद जीरो, वी गो बैक विद जीरो, in between we think we have conquered the whole world, but we come with zero, we go back with zero. Only when we add one Krishna to our life, Krishna is that one, then our value becomes 10 or 100 or 1000 or 10,000 or lakh or 10 lakh or crore or 10 crore or 100 crore or 1000 crore or billion. Only when you add Krishna, one, because he is permanent, he is the permanent, and we all are zero, zero, shunya in the material world. Nothing is permanent in our life. We are zero only in the end. So we have to add that one. So when we come out of this illusion that we are someone, prakriti kridamana gune karmani sarvas, ahankar vimulatma, in the ahankar, in the false illusion, false prestige, ahankar, false prestige, and illusion, we think that we are the doer. Hum kar rahe hain, karta miti mannate, I am the doer. Then Krishna says you are a fool number one, because you are doing nothing. You are just getting entangled more and more because of the 3 modes of material nature. 3 मोड मतलब कैसे होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। ये आपको रोप जैसे बाइंड करते हैं। आप कुछ भी एक्टिविटी करो, एक रोप बाइंड हो गया आपके अक्रॉस। आप एक और काम क्रिया करो, एक और रोप। जब 3 रस्सियां बाइंड होती है तो कितना स्ट्रांग होती है पता है आपको? 3 रस्सियां को एक साथ आप चोटी की, चोटी कितने लोगों ने चोटी बनाई है? माता जी लोगों ने। इतने माता जी ने चोटियां बनाई है अपनी, या उनकी मम्मी ने बनाई उनकी चोटियां। चोटी कैसे बनती है? 3 करते हैं ना, 1 2 3, और 3 को ओवरलैप करते हैं, राइट? हाँ, 3 को ओवरलैप करते हैं, चोटी बनती है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है फिर वो चोटी, राइट? इतनी स्ट्रांग, फिर अब उसमें आप कुछ भी लटका सकते हो, नहीं गिरने वाला, वो स्ट्रांग होती है वो। उसी प्रकार जो त्रिगुणी माया है, ये ऐसी है, ये 3 चोटियां बाइंड होती है, वो रोप बन जाती है, और वो रोप से हमको बाइंड किया जाता है। हम एक क्रिया करें, एक बाइंड हो गया, दूसरी क्रिया करें, दूसरा बाइंड, तीसरी क्रिया करें, तीसरा बाइंड। ऐसे हम जितनी क्रिया कर रहे हैं उतना मटेरियल में बाइंड हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, हमारे इल्यूजन, फॉल्स प्रेस्टीज और फॉल्स एसोसिएशन के कारण। फॉल्स मतलब हम मोड्स ऑफ मैटर में एसोसिएट कर रहे हैं, हम बाइंड हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं। लेकिन हम तो इटर्नल है, हमारा तो मटेरियल मोड से कुछ लेना देना ही नहीं है। वी आर नॉट इवन, वी डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. When we come to know, understand that we don't belong here, and our attachment to the 3 modes is only because of our lust, desire to enjoy, to lord it over the 3 modes of material nature, then we come out of false illusion.
false prestige and false association. Then we associate with devotees who are on the path of coming out of this material world. False association, sadhu sangha. And we give up our false pride. अहंकार को हम छोड़ते हैं और रियल ईगो क्या है? There is false ego and there is real ego. What is false ego and what is real ego? हाँ, रस्सी भी ऐसी बनती है. What is false ego? What is real ego? False ego, false prestige is I am this body. I belong, my name is so and so. I belong to so and so family. I belong to so and so caste. I belong to so and so society. I belong to so and so state. I belong to so and so country. I belong to so and so land. I am Hindu, I am Muslim, I am Sikh, Isai. All false identification. All isms are false identification. They are just born out of this body. आज आपने भारत में जन्म लिया है, किसी हिंदू परिवार में अपने आपको हिंदू बोल रहे हो. कल आप अपने कर्मों के अनुसार किसी कैथलिक परिवार में जन्म लोगे, आप क्रिश्चियन बन जाओगे. आज आप जय श्री राम बोल रहे हो, कल आप जय श्री जीसस बोलोगे. All because of false or this body, identifying yourself with the body. But you are not the body. You are not. So your soul doesn't belong to this land or this country or that country or this religion or that religion or this society or that society or this caste or that caste. Soul only belongs to Krishna. So you are part and parcel of Krishna. आप बोलते हो ना, if someone asks you, who are you? What will you say? Are you this body? You say, this is my body. This is my hand. This is my leg. This is my pencil. So if this is my pencil, I'm different from that pencil. So if this is your body, you're different from that body. So then who are you? Who are you? Who are you? जब कोई आदमी मर जाता है तो लोग रोते हैं ना कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया. कौन चला गया? बॉडी तो वहां पर ही पड़ी है, वहीं लाई डाउन कर रही है, आपके सामने बॉडी है. बोलते हैं अरे यहाँ क्यों रो रहे हो आप? यहाँ तो है, सो रहे हैं. सोने चला गया. कहाँ चला गया? यहाँ तो लाई कर रहे हैं. अरे ये तो उनका शरीर है, वो चले गए. कौन चला गया? क्या है हमारे बॉडी में जो चला गया? क्या है हमारे बॉडी में जो कोई वापस उस बॉडी को एनिमेट नहीं कर सकता? सारे केमिकल्स है उस बॉडी के अंदर, सारे यंत्र उस बॉडी के अंदर मौजूद है. हार्ट, ब्रेन, एवरीथिंग, ऑल केमिकल्स. करो चालू उस बॉडी को. कोई कर सकता है? नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि क्या चला गया छोड़ के? स्पिरिचुअल स्पार्क चला गया. स्पार्क, spiritual spark. Prana is a symptom of that spark. Spiritual soul चला गया. Consciousness is a symptom of the soul. वो चला गया. अब जब तक वो वापस नहीं आएगा बॉडी में, बॉडी एनिमेट नहीं होगी, वो कभी वापस आएगा नहीं, क्योंकि उसने बॉडी एक बार छोड़ दी, मतलब छोड़ दी. It will go and take another body due to his karmas. So that we are that soul, but we are falsely identifying with this body, with this nation, everything, falsely. So जब हम इस false illusion से बाहर निकलते हैं, इस false ego से बाहर निकलते हैं कि we are this body, we belong here, and we come to our true ego. What is our true ego? What is the true ego? हाँ? इसी श्लोक में आगे कृष्णा बोलते हैं ना, true ego. What is the true ego? What is the true ego? बताइए. मवांश जीवलोके जीवभूत सनातन. Krishna says Sanatana, eternally you are my part and parcel, my eternal fragmented part and parcels. The living entity, they are my part and parcel. That is your real identification. जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्यदास. You are Krishna's part and parcel.
When you understand that you're Krishna's part and parcel, you belong to Krishna, you belong to Krishna's family. Right now, you are making your own families here, which is all illusion, which is all temporary, which will be over with time factor. आपके लास्ट लाइफ के पेरेंट्स कहाँ हैं? कैन यू इंट्रोड्यूस योर लास्ट लाइफ पेरेंट्स टू मी? आशुतोष आनंद, कैन यू इंट्रोड्यूस योर लास्ट लाइफ पेरेंट्स? कैन यू मीट देम? कैन यू टॉक टू देम? नंदन, राहुल शाह, अदिति शर्मा, श्रद्धा गांजे, कहाँ है? लास्ट लाइफ के हस्बैंड कहाँ है? वाइफ कहाँ है आपकी? कहाँ है? बताइए। तो ये लाइफ के रहेंगे इटर्नली आपको, आपके साथ में? जब लास्ट लाइफ की नहीं रह पाए, आपको पता भी नहीं है, तो ये लाइफ के आपके हाथ में रहेंगे? नेक्स्ट लाइफ में नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो जो टेम्पररी है उनके लिए आप कृष्णा को छोड़ रहे हो, जो परमानेंटली आपके साथ है, जिसके आप परमानेंटली पार्ट एंड पार्सल हो। Are you intelligent then? You're leaving your permanent relationship with Krishna for the temporary relationships in the world, which will not even stay with you. And normally पता है क्या होता है, गरुड़ पुराण में, बाकी में लॉज ऑफ कर्मा कैसे वर्क करते हैं? जो आपका इस लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है, जिसने आपको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है, वो कौन बनता है नेक्स्ट लाइफ में पता है? जिसके साथ आपके सबसे ज्यादा फाइट्स हुए हैं, हाँ, वो आपका हस्बैंड या वाइफ बनता है। कृष्णा ऐसे बोलते हैं ना कि तुमको इतने फाइट करने का आदत है ना, ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही घर में ला देता हूं, चलो हस्बैंड मियाँ बीबी बन के रहो, अब जितना फाइट करना है करो, जितना फाइट करना है करो। सो द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स become your wife or husband in your next life, and then you Krishna से now fight, जितना फाइट करना है, बेलन से फाइट करो, चकले से फाइट करो, हंटर से फाइट करो, एक दूसरे को पंच मारो, जो करना है करो, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम आपको, क्योंकि यू ऑलवेज वांट टू फाइट विद दैट पर्सन ना। उसको अरे वो इतना गंदा है, अरे वो इतना ये, अरे वो इतना ये, दिन बार उसको एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो। कृष्णा बोलते कम ऑन, ओके, साथ रहो, करो, अब जितना करना है टॉर्चर एक दूसरे करो। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो योर एंड उसके फिर ना, हाँ, हर चीज से फाइट होती है। सो दिस योर फादर इन दिस लाइफ, as per karmas, can become your wife in the next life, can become your child in the next life, can become your husband in the next life. This is how the laws of। तो अभी आप जिसको पापा पापा बोल रहे हो, अगले लाइफ में वो हस्बैंड हो सकता है आपका। जैसे तो ब्रह्मा जी अब देखते हैं सब, या कृष्णा देखते हैं, बोलते हैं सब क्या कर रहे हो? नाउ सी दिस फ्रॉम द विजन ऑफ कृष्णा। क्या सोच रहे हो कृष्णा देख के? एक में हम उनको अपने पिता बोलते हैं, और नेक्स्ट में हम उन्हीं, वो हमारी हस्बैंड वाइफ होते हैं, वही फाइट कर रहे होते हैं। जो आपकी सिस्टर हो ये लाइफ में, वो आपकी वाइफ हो सकती है नेक्स्ट लाइफ में। दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप कॉल्ड इल्यूजन, फॉल्स, टेम्पररी। डोंट, कृष्णा बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों बोलते हैं कृष्णा? क्योंकि ये सब फ्रॉम कृष्णाज विजन, इट्स अ मैटर ऑफ लाफ्टर। कृष्णा हंसते हैं। क्या एक लाइफ में राखी बंधवा रहे हो, दूसरे लाइफ में यू आर हैविंग चिल्ड्रन विद द सेम पर्सन। So the joke is on us. The real joke is on us because we have taken all these false identification as real.
all these false association, attachments as real. And we have built our false prestige around it. False ego, ये मेरा है, ये मेरे वो है. अरे आपके कोई नहीं है, क्योंकि कल रिलेशन टोटल चेंज हो जाएगा. आपके शरीर खुद भी आपका नहीं है, तो आप इनको क्या बोल रहे हो अपना अपना. तो इसलिए द ओनली रियल रिलेशनशिप इज विद कृष्णा. ट्राई टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विद कृष्णा. इसको बोलते हैं माया, मैट्रिक्स. माया का मैट्रिक्स चल रहा है, इल्यूजन ऑफ माया. कि आपको लगता है क्षण भर के लिए, 30-40 साल के लिए, कि ये मेरा ये है, और वही खत्म. नेक्स्ट लाइफ में वो आपका और कोई हो सकता है. अभी आप इंडिया में बैठे बैठे बोल रहे हो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. पाकिस्तान को इतना दिमाग में याद कर रहे हो. कृष्णा बोलते हैं यमे वापिस स्मरणम. जो आप याद करते हो आप बन जाते हो ऐसा. नेक्स्ट लाइफ में आप पक्का पाकिस्तानी बनोगे. फिर आप क्या बोलोगे? बोलो. What will be your slogan that time? हाँ, क्या स्लोगन होगा आपका? हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलोगे आप. हाँ, हिंदुस्तान. अब बोलो. अब वही चीज अगर ब्रह्मा या कृष्णा ऊपर से देख रहे हैं तो क्या सोचेंगे कृष्णा? What will Krishna think if Krishna is seeing this from the top, or Brahma is seeing? What will be their opinion of you? हाँ, कितना उल्लू है. सही है, कितना उल्लू है ये इंसान. 40 साल पहले या 30 साल पहले या 10 साल पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा था यही इंसान. अब इसको ऐसा शरीर मिल गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है. उनके लिए फनी, उनके लिए कॉमेडी है, हास्य रस. इसको बोलते हैं हास्य रस. उनके लिए हास्य रस है ये. Right? So this is the reason why all kind of relationship, in the material world is called temporary or illusion, and we should not get attached to them. Try to work. आपको एक दिया है सर्कमस्टेंस के अनुसार, कर्मा के अनुसार. बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन. Work without attachment, because attachment will lead to further attachments and you will look foolish and the joke will be on you because of the attachment. So work without attachment. कृष्णा बोलते हैं कि attachment के वर्क मत करो, because attachment will make you look fool in the future. Be attached only to Krishna, because that is the only relationship that is permanent. And how to be attached to Krishna? How to develop that relationship with Krishna? हाँ, अरे द जोक वाज ऑन ब्रह्मा ऑल्सो. कृष्णा का जोक ब्रह्मा के ऊपर भी था. बेचारा ब्रह्मा भी भुगती है, भुगत भोगी है कृष्णा के जोक के. How Brahma is the bhugat bhogi of Krishna's joke? बताओ. Brahma is the first bhugat bhogi of Krishna's joke, Krishna's Maya. How can anyone tell how? बताओ किसमें दिमाग है? Who can say why? Why Brahma is the first bhugat bhogi? सरस्वती. Yes, ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा किया, मतलब सरस्वती उनकी डॉटर हो गई, because Brahma born from Brahma. Then what did Brahma had to do? Marry सरस्वती, डॉटर से शादी. So the joke was on Brahma. So the first joke was on Brahma only. And then इसलिए ब्रह्मा ने हम सबके ऊपर जोक कर दिया. बोला कि why should I have all the fun? You also join me in the fun, on the joke. So this is what happened, right? So you have to understand this, that this entire Krishna's matrix, Maya, is an illusion. It is a joke on us. That's why don't get entangled in this joke.
Be aloof from this joke. Like a lotus inside the water but not touched by the water. Yeah, ब्रह्मा was the first person जिसको कृष्णा का 1 रुपए का सर्कस में चाबुक पड़ा था. ले भैया, पहला चाबुक तुझे पड़ेगा. Now this is your daughter, now marry your daughter. Technically he married his daughter only, na? Because that was the first person he had to. So Brahma ji was the first of the in the circus जो कृष्णा से चाबुक पड़ा था जिनको. And because he got, उन्होंने सबको डाला, चलो तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ. उन्होंने एक सृष्टि क्रिएट इसलिए की ना. बेचारे 4 कुमार को उन्होंने बोला, he gave birth to the 4 कुमारास. और चारों बोले, भैया ब्रह्मा जी आपके ऊपर इतना बड़ा जोक किया है कृष्णा ने, क्यों आप हमको चाहते हो? वो समझ गए कि ये जोक इज ऑन ब्रह्मा, देन ब्रह्मा वांट्स टू पुट द जोक ऑन अस. दे डिड नॉट मैरी ओनली. चारों कुमार ने बोला हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे. ब्रह्मा को हेडेक हो गया, अब क्या करूं मैं? ये लोग तो सर्कस में एंटर होने को तैयार नहीं है. दे डोंट वांट टू एंटर द सर्कस. ब्रह्मा ने बड़े चाव से 4 कुमारों को पैदा किया ना. आई विल मेक देम गृहस्थास एंड मेक देम एंटर इनटू द सर्कस एंड इवन मेक देम गेट बीटन. बट वो उनका फ्लॉप हो गया. क्योंकि क्यों हो गया फ्लॉप? क्यों हो गया फ्लॉप? उन ब्रह्मा का प्लान फ्लॉप क्यों हो गया? बताओ, ब्रह्मा का प्लान फ्लॉप किसने किया? नारद मुनि ने ब्रह्मा का प्लान. नारद मुनि डिवोटी. एक डिवोटी एक माया के चक्र को तोड़ सकता है. ब्रह्मा का प्लान था, ब्रह्मा का प्लान. ये 4 कुमार जाके गृहस्थ बनेंगे और माया के जाल में फंसेंगे, 1 रुपए का सर्कस में जाएंगे और चाबुक खाएंगे. लेकिन डिवोटी से मिल गए नारद मुनि से. नारद मुनि बोला, क्या कर रहे हो? ये ब्रह्मा जी खुद चाबुक खा के आए हुए हैं कृष्णा का, तुम वही खाना है तुमको. रुको रुको. उन्होंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो. वो जब किया, वो ब्रह्मचारी बन गए. बोले जाके ब्रह्मा को जाके बोलते अब हमको शादी नहीं करनी है. अब बोला क्या? ना, हमने शादी करनी है. नारद ने हमको सब समझा दिया कि आपने कैसे उल्लू बने आप, और आप हमको उल्लू बना रहे हो. अब हमको शादी वादी नहीं करनी है. वो बोला अरे बाप रे बाप, टेंशन हो गया. देन मनु को पैदा किया. मनु आजा भैया. मनु को किया है, अदिति को, दीति को. फिर वो चालू हो गया पूरा. ब्रह्मा ने, ब्रह्मा भी स्मार्ट है तो उन्होंने नया चालू किया, भैया पहले गृहस्थ बना के भेजो. But only a devotee can break this. Guru. Narada Muni was a guru. So Guru Padashraya. So to go to Krishna, to have an understanding change in our understanding, we need a guru. We need a guru. He can change our consciousness. हम अपने आप समझ सकते हैं चाबुक मिल रहा है, लेकिन गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? गुरु के पास जाने से. इसीलिए शास्त्र में गुरु पदारविंद मदाश्रय, गुरु का आश्रय सबसे इंपॉर्टेंट. गुरु के आश्रय में क्या होता है? What happens? You go to a guru and you ask him, please help me to come out of this maya. Then the guru will initiate you with knowledge, will make your spiritual life start. Initiate your spiritual life with knowledge, with gyan of how this maya is a matrix, is trying to make you, keep you entangled here, bind you here, and you have to get out of this maya, this matrix. So the guru will initiate you and engage you in Krishna seva, in his seva, in Krishna's seva. Seva, sadhana, sadhu sang will start in your life. And when seva, sadhana, sadhu sang starts in your life, then you start getting released one by one from these 3 modes of material nature, and your relationship with Krishna starts getting established again. The original position, Jivira Sarupe Krishna Nityadas, you start reviving that. Oh, now you understand that, okay, this Maya is not a place for me to stay. I belong to Krishna Tad Dham Parama Mama. You get that knowledge. Guru gives you the knowledge that there is a dham, there is a place, Krishna's, where Krishna stays with his eternal and
devotees, and if you reach that place again once, you will never come back here. You will never get entangled in this Maya Jal. That place is without Maya. It is Krishna's abode, where you can enjoy eternal life. That place doesn't require a sun or a moon to electrify it. It is self-illuminating because it is illuminated by Krishna, the supreme, you know, personality of Godhead, from whom the Brahma Jyoti comes, and that Brahma Jyoti illuminates the entire Vaikuntha planets. And you go there. How you go there? How do you reach the Vaikuntha planet? The Guru engages you in sadhana bhakti. Shravan, Kirtan, Smaran, Path, Sevanam, Archanam, Manam, Dasyam, Atma Nivedanam. You chant, you hear, and your Cheto Darpanam, your knots are getting released one by one, one by one. The knot that had tied you, they are getting released. You're cutting those knots by Shravan, Kirtan, Smaran, Path, Sevanam, Archanam, Manam, Dasyam, Atma Nivedanam. The Navda Bhakti. And slowly, you gradually realize you are not this body, you are spirit soul, you are part and parcel of Krishna. Maya Sakta Mana Partha Yoga Jundan Madashraya. Your link with Krishna is established. As your lust, anger, greed is getting finished, your illusion gets finished. Your illusion gets finished, your false ego gets finished. Your false ego gets finished, your false association gets finished. All material world. You have no attachment then. Only detachment from the material world. You're getting attached to Krishna. Maya Sakta, Mana Partha, Yoga Junam. Asakti to Krishna starts. And when your asakti, your attachment to Krishna start, then your yoga, link with Krishna is established. This happens when you follow the bhakti mark, bhakti process. Sadhana bhakti. So sadhana bhakti is two types. Vaidhi sadhana and Raganuga sadhana. What is Vaidhi sadhana? Vaidhi sadhana is forced bhakti. Because we are lazy, we are unfortunate, we have to be forced. We have to be forced to chant. We have to be forced to do sadhana. Like how many of you are forced? You have to force yourself. सबको फोर्स करना पड़ता है ना, क्योंकि आप लोग को अभी भी 1 रुपए का सर्कस में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, राइट? इतना सुनने के बाद में भी 1 रुपए के सर्कस में स्टिल यू हैव इंटरेस्ट. Every day at least half an hour to 1 hour you should read Prabhupada books, because the knowledge is that knowledge will give you the determination. Knowledge is the food of the intelligence. Intelligence is discriminating power. It has the discriminating power. It can control the mind. A strong mind will take you here and there. A weak mind will take you here and there. But because when the mind is weak, or materially strong and spiritually weak, it doesn't listen to the intelligence. Example देते हैं, जैसे आपने गए, आप you are going outside some window shopping or somewhere, and you see a pav bhaji store, or in Juhu Beach you see a pav bhaji store. So your mind is so weak spiritually and so strong materially that the mind will think, अरे ये तो अच्छा पाव भाजी का स्टोर है, चलो पाव भाजी खाते हैं, प्याज लहसुन वाली पाव भाजी. Then mind इंटेलिजेंस भी बोलेगा आपको कि अरे रुको, प्रभु जी ने बोला था कि प्याज लहसुन नहीं खाना है. माइंड बोलेगा अरे कौन प्रभु जी, क्या प्रभु जी यहाँ पे है, कोई देख रहे हैं हमको यहाँ पे, कैसे पता चलेगा उनको, खा लो एक बार, कौन बताने वाला है. माइंड आर्ग्यू करेगा इंटेलिजेंस से. फिर माइंड बोलेगा इंटेलिजेंस को, देखो लास्ट टाइम खाया था, याद है कितना मस्त टेस्ट था ये पंडित पाव भाजी वाले का, क्या मस्त नींबू डाल के खिलाता है वो, प्याज लहसुन डालता है, अरे क्या टेस्ट. इंटेलिजेंस फिर वीक हो जाएगा थोड़ा, नॉलेज नहीं इंटेलिजेंस के पास में ज्यादा. अगर तर्क वितर्क हो तो इंटेलिजेंस बोल सकता है कि मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, आप प्याज लहसुन खाओगे तो आपके एजिटेशन होगा माइंड में, आपके इंद्रिय तृप्ति का और मन करेगा, यू विल फॉल डाउन. मेनी आर्ग्यूमेंट द माइंड इंटेलिजेंस कैन गिव इफ इट हैज नॉलेज. रीड करोगे तो नॉलेज आएगा, नॉलेज से इंटेलिजेंस आप शार्प होगा, वो फिर माइंड को डिफीट कर सकता है. लेकिन जब नॉलेज नहीं होगा, सेंटिमेंटली हम करेंगे तो इंटेलिजेंस बोलेगा चलो क्या फर्क पड़ता है, खा लो.
फिर माइंड थिंकिंग फीलिंग विलिंग करेगा और जाके सेंसेस एक्ट करेंगे और पाव भाजी खाओगे और आप हो गया आपका हरि बोल। तो इसी प्रकार से दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड, वी हैव टू गेट नॉलेज, वी हैव टू हियर। फिलोसफी इज बोरिंग बट यू हैव टू हियर इफ यू वांट टू मेक योर इंटेलिजेंस स्ट्रांग शार्पर। कृष्ण कथा के टाइम पे 200 लोग, 180 90 200 लोग आते हैं ना एकादशी में। भगवत गीता के टाइम पे 150 60 लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कथा सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है, फिलोसफी में इंटरेस्ट नहीं आता है। बट दोनों कृष्ण के बारे में ही है। तो मतलब क्या है, आपकी भक्ति स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है, सेंटिमेंटल लेवल पे है। क्योंकि यदि आपको कृष्णा में इंटरेस्ट था तो कृष्णा की फिलोसफी हो चाहे कृष्णा की कथा हो, दोनों स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सेम ही होती है। तो यदि उतने ही स्ट्रेंथ से आपको कृष्णा की गीता भी सुननी चाहिए जितना आपको कृष्णा की रसलीला में इंटरेस्ट आता है। रसलीला में इंटरेस्ट आएगा लेकिन गीता में इंटरेस्ट नहीं आएगा हमको। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंटल है भक्ति, स्पिरिचुअल नहीं है भक्ति। तो ये होती है वैदिक भक्ति, जहाँ हमारी भक्ति सेंटिमेंटल होती है, हमको फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन जब हम भक्ति अब रागानुगा भक्ति में आते हैं, साधना रागानुगा भक्ति, तो उसमें हमारी भक्ति स्पॉन्टेनियस, वो टाइम पे फोर्स नहीं, वो टाइम पे इंटेलिजेंस को इतनी नॉलेज मिल चुकी होती है एंड आप कृष्णा से इतने अट्रैक्ट हो चुके होते हो, यू आर ऑलरेडी फॉलन इन लव विद कृष्णा because you know Krishna is the supreme personality Godhead and you are his part and parcel, and serving Krishna is the only way to go back to Godhead. And then Krishna's qualities, Krishna's form, Krishna's roop, Krishna's Venu, Krishna's Madhurya, they all attract you, they all enchant you, they all, pull you like a magnet. So you want to do everything Krishna with spontaneous love. No one has to force you. You get up early in the morning at 4 o'clock. कितने लोग उठते हैं? Because Krishna clearly says, Lord Chaitanya clearly says, with Vedic Bhakti you can't go back to Godhead. Vedic Bhakti से आप भगवान के पास, भगवान के धाम नहीं जा सकते. Vedic Bhakti cannot take you to Golok. Only spontaneous devotional service will take you to Golok. Understood? Unless and until you reach the stage of spontaneous devotional service to Krishna, then only you can go back to Godhead. Vedi marg na paibe Vrajendra Krishna Chandra. However, the following the path of Vedi sadhana will not attain Sri Krishna in Vrindavan. जब तक फोर्स करते रहोगे अपने आप को, वेदी मतलब फोर्स भक्ति, जब तक आपकी भक्ति फोर्स्ड होगी आप कृष्णा को नहीं पा सकते। क्लियरली लिखा है शास्त्र में, रागानुगा मार्गे तारे भजे यही जन सही जन पाए व्रज व्रजेंद्र नंदना। Whoever worship Bhagavan Shri Krishna on the Raganuga spontaneous path will only attain Shri Nandanandana in the land of Vrindavan. You will only get Krishna when you start loving Krishna spontaneously. And to love Krishna, your foundation will have to be strong. To make your foundation strong, you will have to attend session, get knowledge, get attachment to Krishna philosophically first, and then by emotions, by bhava, by love. Emotions without philosophy is sentiments. Philosophy without emotion is fanatism. So both is wrong. Both have to go simultaneously. Philosophy also and love also. Emotions also. एक की भी कमी नहीं हो सकती. जिनमें लव नहीं होता फनेटिक बन जाते हैं, और जो खाली सेंटिमेंट्स के पीछे भागते हैं और जिसमें नॉलेज नहीं होता है वो सेंटिमेंटल्स बन जाते हैं. दोनों का बैलेंस चाहिए अगर आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है. तो दोनों के बैलेंस के लिए यू विल हैव टू तपस्या करने. कोई बोल नहीं रहा है कि एक टांग पे खड़े रहो, सांस रोको. नो, इतना बोल रहे हैं कि रीड, डू सेवा, डू साधना, डू साधु संग, 10 sessions, then you will get the power to understand Krishna, get attached to Krishna and not fall down, and ultimately you'll become able to come to Raganuga Bhakti, spontaneous devotional service, where you can get connect with Krishna. Maya Sakta Mana Partha Yoga Jundan Madashraya. Your connect with Krishna will develop, and as your connect with Krishna develops, then there will be direct interaction with Krishna.
then even if you're in the material world, you'll be able to talk to Krishna, walk with Krishna, dance with Krishna, everything. It's not something that is very far away. Few years of strict sadhana will take you there. Just requires few years. प्रभुपाद बोलते हैं 12 साल तक स्ट्रिक्टली वेदी भक्ति करो, 12 साल, एंड यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस. मतलब आपके अंदर कृष्णा से लिंक डेवलप हो जाएगा. मैं आसक्त मना पार्थ. आप अनंत निवृत्ति को छोड़ दोगे पीछे. यू डेवलप निष्ठा, रुचि, आसक्ति, एंड देन भाव भक्ति. Like we are talking, you are hearing, and I'm talking. Like that, you'll be able to talk to Krishna within 12 years of your strict Vedic sadhana. Strict. But for that, we have to develop that eagerness, that enthusiasm, that determination that we want to see Krishna. Just saying, oh, I love Krishna doesn't make any sense. जो एक माँ होती है ना, खाली बोलेगी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ मैं, बच्चा रो रहा है उधर, आई लव यू वेरी मच ओ माय सन, वो बच्चा रो रहा है, मैं अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चा रो जा रहा है, प्यार करती हूँ, बच्चा रो रहा है, प्यार करती हूँ, बच्चा रो रहा है. दूसरे आगे बोलेगी अरे मूर्ख, और रो रहा है, उसको दूध पिला ना. प्यार कर रही है, प्यार कर रही है, प्यार कर रही है बोल के तो ना वो चुप होगा. अगर प्यार करते हो तो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ. खाली बोलने से नहीं होता है. हम कृष्णा को प्यार करते हैं बस हो गया, उससे नहीं चलने वाला काम. प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ेगा. उसी प्रकार हम कृष्णा से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, उससे बोलने से जीरो वैल्यू है इसका. जीरो वैल्यू है इसका जब तक प्रैक्टिकली कृष्णा के लिए क्या करते हो नहीं बताओगे कृष्णा को. लव मीन्स सर्विस. इफ यू लव समवन यू डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन. दैट इज द मार्कर ऑफ लव, द सिम्टम ऑफ लव, that you are able to do anything for that person. But for Krishna, we just say we love Krishna, we love Krishna, we love Krishna, we do nothing for the Krishna. We are so lazy that we can't even get up early in the morning for Krishna. What kind of love is that? If you love someone, your boyfriend or girlfriend, उनका एक रिंग आएगा ना सुबह 4 बजे आप उठ जाओगे. एक रिंग आना चाहिए. अगर किसी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोल दिया ना रात के 12 बजे कि मैं 3 बजे कॉल करूंगी, वो एक रिंग आएगा ना उसके पहले आपकी नींद खुल जाएगी 3 बजे. वो टाइम कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी के फोन की जरूरत, किसी को बुलाने उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली उठ जाओगे आप. ऑटोमेटिक होगा वो टाइम पे कहां चले जाते हैं, मेरी नींद नहीं उठ पाती, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें आपका अटैचमेंट हो गया है ना, लव हो गया. इसलिए एक सेकंड में यदि कृष्णा से हमको अगर ऐसे लव हो ना रियल में, तो हमको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. 4 बजे उठते ही परमात्मा, क्योंकि हमारा कनेक्ट परमात्मा, प्यार करते हैं ना हम कृष्णा से, प्यार करते हैं तो कृष्णा हमको खुद ही उठा देगा. इफ यू लव. बट वी फेल इन एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. Why? Because we have no genuine love. We are just on the sentimental path. हमको लगता है कि हमको है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं. अगर होता तो हम उठ पाते. होता तो हम 16 माला क्या 32 माला 64 माला जितना कर सकते थे. दिन भर सेवा कर रहे होते हैं. इतना टाइम ही नहीं मिलता हमको प्रजल्पा के हम प्रजल्पा करें. इतनी सेवा है, उसमें एंगेज रहते हैं. समथिंग प्रैक्टिकल करते हैं हम. But our love is just superficial, sentimental level. So we have to come out of that and come to the real world, real love world. Real, develop real love for Krishna. Then only that will attract Krishna. Patram pushpam phalam toyam yome bhakta pranashyati. You have to offer with love and devotion, and then Krishna accepts. So until you have love and devotion in your heart, you can't go back to Godhead. You will be entangled in this material world only and suffer 1 rupee ka circus, birth after birth. So be sincere, be serious when you go to a guru and pad ashray, take the guru's ashray, learn and obey his instruction, follow his instruction to become sincere and serious in your sadhana. Then Krishna से attachment आपका होगा. ऐसे नहीं सुबह गुरुदेव, we are
इन डेप्थ टू यू, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, उससे क्या कोई वैल्यू है बात की? कोई वैल्यू नहीं है जब तक कुछ करो नहीं प्रैक्टिकल। जस्ट लिखना है वहां पे ना, लिखने में लिख देते हैं लोग, गुरुदेव वी लव यू सो मच, वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, वी कैन डू दिस फॉर यू, दैट फॉर यू, दिस फॉर यू, दैट फॉर यू, सॉरी दिस दैट, 108 बार लिख दिया। क्या वैल्यू है इस चीज का जब तक प्रैक्टिकली नहीं दिखाओगे कि आपको कृष्णा से अटैचमेंट हो गया है इतना, जब प्रैक्टिकली नहीं दिखाओगे कि आप सेशन अटेंड कर रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं दिखाओगे जब तक आपके आप कृष्णा की सेवा ऐसे कर रहे हो, कृष्णा की नॉलेज ऐसे एक्वायर कर रहे हो, वो खाली वर्ड्स है, वर्ड्स, नो डेप्थ इन दोन। इफ देयर इज जेन्युइन लव देन यू विल फॉलो व्हाट द गुरु सेज। देन आप अगर वो वर्ड नहीं फॉलो किया तो आप सांस नहीं ले पाओ अपनी दूसरी। उसको बोलते हैं रियल फॉलो करना गुरु को, पदाश्रय। गुरु के इंस्ट्रक्शन को जब तक नहीं फॉलो करें हमको एंजाइटी हो जाए। दिस इज कॉल्ड रियल पदाश्रय। You always meditate how to follow the instruction, to serve the instruction of the guru. That is what is padashraya, surrender to guru and to Krishna, that you want to just do what they say। सर्व धर्मान प्रत्यय कृष्णा बोलते हैं तो हम करते क्यों नहीं है? अगर कृष्णा से प्यार है तो क्यों हमें फिर माया हमें यहाँ वहां ले जाती है? माया में टच ही नहीं कर सकती यदि हम कृष्णा से प्यार करते हैं तो। माया में टच कर रही है मतलब हमें कृष्णा के प्रति हमारे हार्ट में कुछ प्यार नहीं है, क्योंकि माया तो अंधकार है, कृष्णा सूर्य समान है। यदि हम सूर्य में, तो अंधकार हो ही नहीं सकता हमारे लाइफ में। यदि अंधकार प्रॉब्लम दे रहा है तो मतलब हमारा फेक है लव टुवर्ड्स कृष्णा, रियलिटी में नहीं है वो। तो रियल डेवलप कर रहा हो। एक बार भक्ति सिद्धांत से पूछा उनके डिसाइपल ने कि माया को कैसे छोड़े हम? माया नहीं छोड़ती है महाराज, माया नहीं छोड़ती है। भक्ति सिद्धांत ने बोला ठीक है, इसका आंसर मैं कल दूंगा सुबह सुबह। तो बोला उन्हें ठीक है। नेक्स्ट दिन डिसाइपल गया महाराज के पास, दंडवत मारा, बोला महाराज माया हमें क्यों नहीं छोड़ती है, माया को हम क्यों नहीं छोड़ते, या माया से हम कैसे मुक्त हो? तो भक्ति सिद्धांत ने बोला ठीक है। भक्ति सिद्धांत के वहां पर एक पेड़ पड़ा खड़ा था। भक्ति सिद्धांत वहां पे भाग के गए और पेड़ को पकड़ लिया जकड़ एकदम टाइट, और चिल्लाने लगे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो डिसाइपल को लगा क्या हो गया अचानक महाराज को, कोई भूत भूत तो नहीं आ गया, क्या हो गया महाराज को, अचानक चिल्ला रहे हैं पेड़ को पकड़ के मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो जाके बोला कि महाराज आप पेड़ को छोड़ोगे तो पेड़ छूट जाएगा ना, पेड़ ने तो ना पकड़ रखा है आपको, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। महाराज ने बोला यही बात है, माया ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने माया को पकड़ रखा है। तुम्हें प्यार है माया से, माया कृष्ण भक्त को नहीं पकड़ सकती, लेकिन तुमने माया को जकड़ के टाइट जकड़ के रखा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे इंस्टाग्राम के रील्स भी चाहिए, मुझे मेरे चैट्स भी चाहिए, फ्रेंड के साथ प्रजल्पा भी चाहिए, मुझे पिज्जाज, अनऑफर्ड पिज्जाज भी चाहिए, एग वाले केक्स भी चाहिए, चॉकलेट्स भी चाहिए, अनियन गार्लिक भी चाहिए, सब कुछ। हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चलता है क्या है ना, कर लो। जिस दिन डिटर्मिनेशन आ गया हमारे अंदर, हम छोड़ देंगे अपने आप। इतना कृष्णा में पावर कृष्णा दे देते हम, वी कैन लीव। अगर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के सामने जाके कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं, तो आपके फादर मदर हिरण्यकशिपु से ज्यादा बड़े डीमन नहीं हो सकते। आपके फादर मदर हिरण्यकशिपु से बड़े डीमन नहीं हो सकते। यदि प्रहलाद 5 साल का बच्चा अगर ये वो कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप कोई 5 साल के नहीं हो, 15-20 साल के हो। लेकिन डिटर्मिनेशन की कमी आपके अंदर है, अटैचमेंट आपके अंदर कमी है, माया को आपने जकड़ के रखा है, क्योंकि यू वॉन्ट योर फ्यू मिनट्स ऑफ एंजॉयमेंट सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। You like your YouTube's videos, different nonsense videos. You like your reels. You like your prajalpa. You like your material friends. You have attachment to boys and girls around you. That's why Maya not living. आके बोलते हो प्रभु जी हम भक्ति नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रभु जी अटैच। अरे छोड़ दो, अटैचमेंट है तो। क्यों है अटैचमेंट?
कृष्णा से अटैचमेंट जोड़ना है तो अटैचमेंट छोड़ दो, खत्म करो, जीरो, आज से खत्म, जीरो, दिल बट्टा सन्नाटा। लेकिन हम वो करते नहीं है, क्योंकि फेथ नहीं है हमें कृष्णा, हमको लगता है कृष्णा है भी कि नहीं है। अगर कृष्णा नहीं हुए तो क्या फायदा सब कुछ छोड़ने का। वी हैव डाउट, एंड गीता कृष्णा बोलते हैं फॉर अ डाउटिंग सोल देयर इज नाइदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो कम आउट ऑफ दिस डाउट, कृष्णा इज देयर, ही इज वेटिंग फॉर आवर लव। give him your love, unrestricted, unconditional, अप्रतिहता, 24 hours, अहितुक्य प्रतिहता, 24 hours, give him, and then you see his reciprocation. You do 1%, he'll do 10% for you. You take one step, he'll take 10 steps towards you. That is Krishna. But we don't. We have hold on to our Maya. We have hold on to this material world. We don't want to leave this material world. Even after we are getting thrashed by in the 1 rupee circus, the thrashing of Maya we are getting day and night, but still we don't want to leave. We are so much attached. We want our name, fame, followers, women, money, luxury, enjoyment, this, that, everything we want. That's why we are not able to. So become sincere and serious if you really want to go back home, back to Godhead. Because unless and until you develop rag, love for Krishna in your heart, spontaneous love, you can't go back home, back to Godhead. You'll be stuck here only. And then maybe you will not get a chance also for human birth. You may go to some Swargaloka, enjoy there. Because Vedi Bhakti will take you to Swargaloka only. It will take you, it will give you a lot of Sukriti. You will go to Brahma Loka, you'll become a Brahma. You may also become a Brahma in your next life. Because Jivas can become Brahma if they perform such, Vedi Bhakti. But you will not get Krishna. Imagine you become Brahma by Vedi Bhakti. 311 ट्रिलियन ईयर तक आपको कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। फिर कितने लंबे टाइम के लिए क्या करना है, हम खाली डेवलप करना है लव कृष्णा के प्रति, सिंसियर होना है हमको, डिटरमाइंड होना है, एंथुजियाज्म लाना है हमको हमारे साधना में, साधु संघ में, सेवा में, and then we can cross over that Vedi Bhakti and come to Raganuga Bhakti. And once we are in Raganuga Bhakti, then though it's a matter of days or weeks to develop Bhav Bhakti. And from Bhav Bhakti, a matter of days or weeks to go to Prema Bhakti. It happens in months, weeks and months, that's it, not even years. So fast, from Rag Bhakti to Bhav Bhakti to Prem Bhakti you can reach. But to go to from Vedi Bhakti to Rag Bhakti, it may take millions of lifetime because we are still attached to our Maya. Understand? So, when you have